Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an evening class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on February 8th, 2024. Pangun Langaya Tegirim Sri Gurum Deenatarinam Sri Chaitanya Meeshwaram Hari Om Tat Sat. Today we have a collective meeting, and that went long. तो आज हमारी एक को डायरेक्टर्स मीटिंग थी मायापुर की और वो थोड़ी लंबी चली. Very nice to see all your devotees very enthusiastically chanting Hare Krishna. तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप सभी भक्तों को यहाँ पर देखते हुए कि कैसे बहुत उत्साहित होकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे. How did you like the installation of the lotus feet of Sri Chaitanya yesterday? तो कल आपको कैसा लगा वो समारोह जिसमें चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना हो रही थी? ভালো লেগেছে? ভালো লেগেছে? So, we are blessed with the participation of their holinesses, Krishna Goswami and Giriraj Swami. तो हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि कल परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूजनीय गिरिराज महाराज ने भी उस समारोह में सम्मिलित हुए. But this was the desire of His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to install lotus feet where Lord Chaitanya had visited. लेकिन ये जो इच्छा थी वो थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की. वो चाहते थे कि जिस जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है वहां पर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना हो. Lord Chaitanya is a very special avatar. चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही विशेष अवतार हैं. Today I heard a lecture by Narendra Modi, Prime Minister of India. तो आज हमने एक प्रवचन सुना जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था. And he was glorifying Sri Chaitanya Mahaprabhu. और वो गुणगान कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का. Lord Chaitanya, the one thing that Narendra Modi brought up, that every avatar gives a little bhakti. तो नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय को छुआ जिसमें वो कह रहे थे कि प्रत्येक अवतार है जो भगवान का वो कुछ भक्ति प्रदान करते हैं. Lord Chaitanya, he gave out the bhakti very freely. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्ति है ये बड़ी ही सरलता से सभी को वितरण की. So I see you all have a lot of bhakti. तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे आप सभी में बहुत भक्ति है. Last week you received the mercy
of Lord Chaitanya. इसका कारण एक ही है कि आप सभी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। Most people, they don't even think of God. बहुत सारे लोग हैं वो भगवान के बारे में चिंता भी नहीं करते। Lord Chaitanya taught us, we should how to love the Supreme Personality of God. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि कैसे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम कर सकते हैं। I told some Christians, मैंने कुछ ईसाई लोगों को ये कहा था, you believe in Father, Son, and Holy Ghost. कि आप विश्वास करते हैं पिता में, पुत्र में और होली गोस्ट में, And you know something about the Son, और आप पुत्र के विषय में कुछ जानते हैं, but you don't know much about the Father, लेकिन आप उस पुत्र के पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानते, and not about the Holy Spirit. और ज्यादा जो होली स्पिरिट है उसके बारे में भी आप ज्यादा नहीं जानते। So his language, AC. Bhaktivedanta Swami, he told us about the Paramatma, Holy Spirit. तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि परमात्मा कौन है, होली स्पिरिट कौन है, And in every one of your hearts is the Kyodakshai Vishnu, the Holy Spirit, the Paramatma. तो आप सभी के हृदयों में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के होली स्पिरिट के रूप में विराजमान है। Every one of your hearts. प्रत्येक भक्त के हृदय में। And Paramatma is an extension of Vishnu. और परमात्मा जो है वो भगवान विष्णु के ही विस्तार है, Or Krishna. कृष्ण के। So I told them that you don't know much about the Father. तो मैं उन्हें बताता था, उन ईसाइयों को, कि आपको पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। But here in India, we have a lot of teachings about Krishna, about the Father. लेकिन यहाँ भारत में हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, और असली हमारे जो परम पिता हैं उनके बारे में। And Lord Chaitanya desired that knowledge spread all over the world. लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी कि जो भगवान के विषय में जो ज्ञान है इसे सब जगह इसका विस्तार हो, प्रचार हो। Bhagavad Gita? Bhagavad Gita was spoken by Krishna. भगवद गीता कही गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा। Next verse today. और एक बहुत अच्छा श्लोक है आज का, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 4। आदिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् आद्याज्ञो अथम एवात्रो देहे देहभृतं वरा। Translation: O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun and moon, is called Adidaiva. And I,
the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Super Soul. super soul. And I am called Adi Yajna, the Lord of sacrifice. Purport. The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. This physical nature is called Adi Bhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes all the demigods and the different planets, is called Adi Daivata. And present in the body along with the individual soul is the super soul, a plenary representation of Lord Krishna. The super soul is called the Paramatma or Adi Yajna and is situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of these words, because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme personality of Godhead seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witnesses his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. The gigantic universal form of the Lord called Adi Daivata is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as super soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purusha, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. Hari Om Tat Sat. So, we're talking about the Paramatma. तो हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा के विषय में। He's in every one of your hearts. तो परमात्मा आप सभी के हृदयों में है, प्रत्येक भक्त के हृदय में। You see everything you're doing. तो परमात्मा सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। Have you ever done anything you're ashamed of? तो क्या आपने आज तक कुछ ऐसा किया है जिसको करके आप शर्मिंदा हैं? You see, Krishna consciousness means to do everything for the seva of Krishna. कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि आप जो भी करें वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करें। And there's nothing to be ashamed of if you do things in the right way. तो अगर आप सही तरीके से जो भी करें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करें तो आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। Just like if a husband and wife pray to the deities of they want my Krishna conscious, long-lived, healthy Suputra. जैसे कि अगर पति और पत्नी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको एक संतान चाहिए जो कृष्ण भक्त हो, दीर्घ आयु हो और भगवान की सेवा करें, तो इसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करता then we're not trying to help our Krishna conscious child.
तो वो उनका उद्देश्य नहीं होता कि वो एक कृष्ण भक्त संतान के रूप में पाए। So, there's a saying that we should not drink water underwater on a fast day. तो एक कहावत है कि निर्जला के उपवास के दिन हमें जल नहीं पीना चाहिए नदी के नीचे जाकर, पानी के अंदर। What does that mean? इसका मतलब क्या हुआ? Drinking water underwater on a fast day. एक फास्टिंग के दिन, एक व्रत के दिन, जिस दिन आपने व्रत किया है कि आप पानी नहीं पिएंगे, उस दिन आप पानी पी रहे हैं, वो भी पानी के नीचे जाकर। Say, you're bathing in the Ganges. तो आप विचार कीजिए कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, And you go underwater. आप गंगा में डुबकी लगा रहे हैं No one can see you. और आपको उस समय कोई भी नहीं देख सकता, और आप वहां पर चुपके से पानी की कुछ घूंट ले लो, You come out, और फिर आप ऊपर आ जाइए very austere. और सबको दिखाइए कि मैं बहुत ही तपस्या कर रहा हूं। But our super soul, Krishna can see you. लेकिन जो परमात्मा आपके हृदय में है वो ये देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। So we can't cheat Krishna. तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। So drinking water underwater on a fasting means very cheating. तो व्रत के दिन पानी के नीचे जाकर पानी पीना, अगर हम ये करते भी हैं तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? So we want to serve Krishna in a way that he'll be pleased. तो हम भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। Lord Chaitanya, there's a song of Lochan Das Thakur, and he sang, एक लोचन दास ठाकुर का एक कीर्तन है जिसमें वो कहते हैं, Sabayavatara Sara Sivamani Kevalananda Khanda. But of all the avatars, Lord Chaitanya is the Sara Sivamani. तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों के जो सार हैं, मुख्य हैं, शिरोमणि हैं, And he gives out his mercy freely. वो है चैतन्य महाप्रभु, और वो अपनी जो कृपा है वो बड़ी सरलता से ही सभी को वितरण करते हैं। And the process that he gives, Keval Ananda Khanda. और जो पद्धति है जो महाप्रभु ने दी है उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है, Simply this. सिर्फ आनंद, मात्र आनंद। So, on Narayana Rishi, they give a process of meditation. तो नर नारायण जो ऋषि थे उन्होंने हमें पद्धति दी ध्यान करने की। Lord Chaitanya, his process is chanting, dancing, twisting. और चैतन्य महाप्रभु की जो पद्धति है उसमें है नृत्य, कीर्तन, प्रसाद सेवन। What's the problem? समस्या क्या है? Keval Ananda Khanda. सिर्फ आनंद ही आनंद है। So, he actually loves you. तो चैतन्य महाप्रभु असल में आप सभी से प्रेम करते हैं। He was thinking, how will these fallen souls get delivered? चैतन्य महाप्रभु इस विषय में चिंता कर रहे थे
कि कैसे इन पतित जीवों का उद्धार हो। And that you have been born in India is a very great blessing. तो आप सभी का जन्म, जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, तो एक बहुत ही बड़ा एक आशीर्वाद है। So how many of you downloaded the Jayapataka Swami app? तो आप में से कितने भक्त हैं जिनके पास जयपताका स्वामी ऐप नहीं था और उन्होंने डाउनलोड कर लिया है? कितने भक्तों के पास जयपताका स्वामी ऐप है? हाथ उठाइए। How many have mobile phones? आप में से कितने भक्त हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं? हाथ उठाइए। And how many don't have a Jayapataka Swami app? कितने भक्त हैं जिनके पास जयपताका स्वामी ऐप नहीं है? Why don't you, in your phone, if you have a smartphone, and then you can look up if you have Android, Google Play Store, Apple Play Store. तो जिनके पास भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड जिसके पास है, वो गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स एप्पल स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। I send out a message every day what I do. और मैं एक दिन में अब कुछ संदेश भेजता हूं, जो भी मैं सेवाएं कर रहा हूं, जो भी मेरी क्रियाएं हैं, मैं अपनी जयपताका स्वामी ऐप में अपडेट करता हूं। You know what I do? आप जानते हैं मैं पूरे दिन में क्या करता हूं? Why not? Send out. अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐप में देखिए। Not secrets. इसमें कोई गुप्त चीज नहीं है। You can, those that have a mobile phone, run the app, look in the Google Play Store or the Apple Play Store. तो जिनके पास भी स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन, वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। I gotta see how many downloads there were today. मैं देखूंगा कि आज ऐप के कितने डाउनलोड्स हुए हैं। Okay, he told me time for question and answer. तो अब ये समय है प्रश्न उत्तर का। I mean, these devotees are wonderful. ये जो भक्त हैं, जो भी आज नहीं, जो भी भक्त हैं, सभी बहुत ही अद्भुत हैं। Why Mayapur Dham is also known as औदार्य धाम? तो एक प्रश्न है कि मायापुर धाम को औदार्य धाम के नाम से भी क्यों जाना जाता है? What does Audarya Dham mean? औदार्य धाम का अर्थ क्या है? The land of mercy. धाम जो है कृपा का, कृपा का धाम। Dharmapuri is known as Aishwarya Dham. जगन्नाथपुरी जाना जाता है ऐश्वर्य धाम के नाम से। It's not different than Dwarka. तो जगन्नाथपुरी द्वारका से अभिन्न है। And the Dharma is known as
Madhurya Dham, वृंदावन जाना जाता है माधुर्य धाम के नाम से, very sweet. बहुत ही मधुर है। Lord Chaitanya appeared in Navadvip Dham. लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था नवदीप धाम में, And he gives out Krishna prema very freely. और वो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो बड़ी सरलता से सभी को वितरण करते हैं। Therefore, Navadvip is known as Madhurya Dham. इसीलिए मायापुर नवदीप जाना जाता है औदार्य धाम के नाम से। You can get the mercy there. और आप वहां भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। Every activity is 1,000 times more auspicious. जो भी क्रिया हम मायापुर नवदीप धाम में करते हैं वो 100 गुना ज्यादा शुभकारी होता है। So when are you coming to Mayapur? तो आप कब आ रहे हैं मायापुर? Next question. How to be consistent in bhakti, especially neophytes who are young and studying or working in offices? तो एक प्रश्न है कि हम कैसे भक्ति में बने रहें, विशेष रूप से जो नए भक्त हैं, जो नवयुवक हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं दफ्तरों में। His harmful questions are very similar. तो भक्ति में कैसे हम बने रहें ये बहुत ही सरल है। We should how to be strong in Bhakti Yoga. One should keep trying. तो हम भक्ति योग में कैसे बने रहें, कैसे शक्तिशाली हों, हमें ये इसका एक रिकॉर्ड, इसकी एक सूची रखनी चाहिए। Pray with the deities. Who was me that I be strong? Pray to the Guru. Be very, very desirous of being strong. तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मंदिर में जो विग्रह हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं भक्ति में बना रहूं। हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं मेरी भक्ति में बनी रहे। हमें बहुत तीव्र इच्छा करनी चाहिए कि हम भक्ति में बने रहें। Don't think that you have what it takes to be strong. तो मुझे लगता है कि आप में वो सब कुछ है जो भक्ति में निरंतर बने रहने के लिए चाहिए। Think that you need mercy. आपको ये सोचना है कि आपको कृपा की आवश्यकता है। This Maya Shakti is very, very strong. ये जो माया शक्ति है ये बहुत ही प्रबल है। One time, but she also wants Krishna prema. क्योंकि माया शक्ति भी भगवान कृष्ण प्रेम पाना चाहती है। But her seva is to touch you. लेकिन जो उनकी सेवा है सभी का परीक्षा लेना। One time Lord Shiva, he was chanting, एक बार भगवान शिव कीर्तन जप कर रहे थे। Gauranga, गो Gauranga, 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 Gauranga. And there
earthquakes, tsunamis, all over the universe. तो जो जब ये कीर्तन हो रहा था तो पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आ गया, तबाही मच गई, बाढ़ आ गई। Parvati Devi, she was thinking, now is not the time for Mahapralaya. तो पार्वती देवी ये सोच रही थी अभी तो महाप्रलय का समय नहीं हुआ है। So she went back to Kailash, Swami, Swami. तो वो भागती हुई कैलाश गई और उन्होंने कहा स्वामी स्वामी। And Lord Nityan, Shiva, he stopped his dancing. तो भगवान शिव ने अपना नृत्य बंद किया। So, why did you interrupt me, Parvati? तो उन्होंने पार्वती से पूछा कि आप क्यों मेरे नृत्य में आपने विघ्न डाला। And then she started, there were earthquakes and tsunamis and Patal Loka. It's not the time for Mahapralaya. तो पार्वती उन्हें कहती हैं कि आप जब नृत्य कर रहे थे तो भूकंप, सुनामी, पाताल लोक पूरा तहस नहस होने वाला था, तो मैंने सोचा ये तो महाप्रलय का समय नहीं आया है। Lord Shiva is known as Asutosh. भगवान शिव जाने चाहते हैं आशुतोष के नाम से। He is very easily satisfied. भगवान शिव बहुत ही सरलता से संतुष्ट हो जाते हैं। But Parvati was curious. She asked, what were you chanting? What gave you so much spiritual bliss? लेकिन पार्वती बहुत जिज्ञासु थी, वो जानना चाहती थी कि भगवान शिव इतने परम आनंद में कैसे हैं। I'm chanting the name of Gauranga. तो भगवान शिव ने कहा मैं गौरांगा का नाम जप कर रहा था। He comes in Kali-yuga and gives out love of Krishna freely. गौरांग महाप्रभु कलयुग में अवतार लेते हैं और कृष्ण प्रेम बहुत ही सरलता से सभी को देते हैं। Parvati asked, how can I see him? तो पार्वती ने पूछा मैं उनके दर्शन कैसे कर सकती हूँ, How can I get his mercy? कैसे मैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकती हूँ। And then Lord Shiva said, he is always in Navadvip Dham. तो भगवान शिव ने कहा वो सब समय नवदीप धाम में वास करते हैं And you can see him there. और आप उनका दर्शन वहां कर सकते हैं। Well, Parvati went to Navadvip Dham और पार्वती नवदीप धाम गई and began chanting, और वहां कीर्तन करना शुरू कर दिया। Gauranga, 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 Gauranga. Lord Gauranga appeared before Parvati. तो गौरांग महाप्रभु वहां पर उन्होंने अवतार लिया पार्वती के समक्ष। And she bowed down and she asked Lord Gauranga, but they call me Maya. तो पार्वती ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और कहा कि सभी मुझे माया कहते हैं। So I don't get association with your pure devotees. तो मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता। They call me the witch Maya.
वो मुझे कहते हैं माया। And so I heard you give out love of Krishna freely, so I also want your mercy. तो लोग मुझे पिशाची माया कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप सभी को भगवान की कृपा दे रहे हैं, तो मुझे भी कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। So when Lord Chaitanya told her that she was non-different from Radharani, तो भगवान महाप्रभु ने कहा कि वो राधा रानी से अभिन्न है, if you are the Adya Shakti, क्योंकि वो अर्ध शक्ति हैं, so therefore you are not different from Radharani. इसी कारण से आप राधा रानी से अभिन्न हैं, My first important. जो कि भगवान की एक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। And in this place, you can realize the connection with Radharani. और ये जो स्थान है, इस स्थान पर आप साक्षात्कार अनुभव कर सकते हैं कि आपका संबंध है राधा रानी के साथ। Parvati Devi took the duck तो पार्वती देवी ने चैतन्य महाप्रभु की जो चरण धूली थी वो ली, of Lord Chaitanya's or the ones of Lotus feet, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से उन्होंने उनकी चरण रज ली, and she put it on the और उन्होंने वो चरण रज अपने माथे पर लगाई, she put it on the part in her hair. जहाँ पर माताएं लगाती हैं सिंदूर, वहां पर An island where she did that is the first island तो जो द्वीप जहाँ पर ये लीला हुई थी वो पहला द्वीप है on Navadvip नवद्वीप धाम का। is known as Srimanta Deep उस द्वीप का नाम है सीमंत द्वीप, because Parvati put the dust of Lord Chaitanya Lotus feet on her Srimanta or the part in her hair. क्योंकि उस इसी द्वीप में पार्वती ने जो भगवान की चरण रज है वो अपने सर पर लगाई थी, जो कि माथे के सर के बिल्कुल बीच में होता है। I forgot what your question was. मैं भूल गया हूँ आपका प्रश्न क्या है। Why Mayapur is called Radharani? So every island in Mayapur is connected with the devotional source. तो प्रत्येक द्वीप जो मायापुर में है वो एक भक्ति के अंग से जुड़ा हुआ है। Just like the first deep जैसे कि पहला द्वीप is Srimanta Deep, सीमंत द्वीप है, it means hearing. जो श्रवण के साथ जुड़ा हुआ है। So like that, every island तो इस प्रकार प्रत्येक जो द्वीप है is connected with Krishna devotion. ये जुड़ा हुआ है भगवान की भक्ति से। 919 now. Last question. ओके, ये आखिरी प्रश्न है आज का। So, this is a question. Does ghosts have free will to come to ISKCON temples and hear Srimad Bhagavatam and get delivered? Or they have to complete term in ghost body at any cost? तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कि जो भूत होते हैं क्या वो अपनी इच्छा से इस्कॉन के हमारे मंदिरों में आ सकते हैं और जो भगवान जो श्रीमद् भागवतम है उसका श्रवण कर सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं, या वो अपने जो उनका जो काल है, जो समय है भूत के शरीर में,
वो उन्हें झेलना ही पड़ता है किसी भी कारण। So this person is worried about the votes. तो ये जिसने ये प्रश्न पूछा है वो बहुत ही चिंतित है भूतों के लिए। Don't become a vote. आप दया करके कभी भूत मत बनिए। Don't commit suicide. आप कभी भी सोचिए मत आत्महत्या करने के बारे में। Or in the Gita it says, those who worship the ghosts have become wolves. भगवान गीता में ये कहते हैं कि जो भूत की पूजा करता है वो भूत बन जाता है। Apparently, the auspicious things keep the inauspicious foods, praise, etc. away. तो ऐसा देखा जाता है अगर हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो जो भी अशुभ जो चीजें हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, ये सब दूर चले जाते हैं। But I heard a story that someone sent some ghosts to Ishwan Temple. लेकिन मैंने एक कहानी सुनी थी कि कैसे किसी व्यक्ति ने किसी भूत को भेजा था हमारे एक इस्कॉन मंदिर में। And the people in the temple were chanting Hare Krishna. और उस मंदिर में भगवान हरे कृष्ण और सभी उस मंदिर में भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। So some of the ghosts got delivered. तो कुछ भूतों का तो उद्धार वहीं पर ही हो गया। Others went back to the person that sent them. और कुछ भूत वापस चले गए उन लोगों के पास जिन्होंने उन्हें भेजा था। These people are very powerful. और उन्हें बताया कि जो मंदिर में जो भक्त हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। And they attacked the people that sent them. और वो उन्होंने उन्हीं लोगों पर उन भूतों ने उन्हीं लोगों पर हमला कर दिया जिन्होंने उन्हें भेजा था। Now, so in chapter 11 of Bhagavad Gita, तो भगवान के जो भगवद गीता के 11वें अध्याय में it shows how one can be saved from Rakshasas. तो उस अध्याय में उल्लेख है कि कैसे अपना कोई बचाव कर सकता है भूतों से, राक्षसों से। If one is an ordinary devotee and commits suicide, अगर कोई साधारण भक्त है और आत्महत्या करता है they become ghosts. तो वो भूत बन जाते हैं। But if one is a Brahmin, second initiated, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण हो या जिसकी सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है and they commit suicide, और वो अगर आत्महत्या करते हैं so they may become a Brahma Rakshasa. तो ऐसा कहा गया है कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। Please don't commit suicide. तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी कारण कभी भी आत्महत्या मत कीजिएगा। There's science about books. ये एक विज्ञान है भूतों के बारे में। What? I want to learn the science about Krishna. लेकिन हमें विज्ञान ये सीखना चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में। His time is time to end. तो मैं बार बार महाराज जी को बता रहा हूँ कि प्रवचन समाप्त करने का समय हो गया है।
Will I see you tomorrow? क्या मैं आप सभी को कल भी देख पाऊंगा? Hare Krishna. हरे कृष्ण। श्रील जयप्रताका स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.